Good morning to one and all. I, on behalf of faculty members, Department of Mathematics, faculty members, School of Management Studies, Punjab University Patiala, welcome Professor R.K. Mishra here. Thank you, sir, for visiting our department. Please accept our respect through a bouquet by Dr. Dev Prakash Singh, Assistant Professor, School of Management Studies, Punjab University Patiala. Today we have with us Professor R.K. Mishra from slide number 1. He is a very senior professor in Department of Mathematics. Slide number 1. Professor Mishra is also holding the post of Director Training and Placement. Slide number 1. Apart from this, he has worked as Registrar NIT Pondicherry, Director Vigilance. Slide number 1. Deputy Registrar. Slide number 1. And many other positions. I am privileged to introduce such a giant mathematician and a administrator before you all. He has published more than 100 research papers in journals of very high repute and very high impact factor. And he has supervised 15 PhD students for their PhD. Today we are fortunate enough because he will be interact with final year students of MBA as well as mathematics regarding entrepreneurship in various disciplines. Now I request Professor R.K. Mishra to please share with valuable thoughts. Thank you, sir. Thank you. First of all, I think I am very much happy and I want to express my sincere thanks to Professor Satyavir and Professor Noori, Madam, and other colleagues from the department who have spared the time for this interaction. And special thanks to you all. You, on a very short notice, you all are here and you know the purpose of our profession is only to disseminate knowledge among my students. So students are always the multidimensional figure around the world. And we as a teacher also, we don't know whom you are going to serve. So especially the student and teaching community, both I suppose they are the multinational and their work domain is multinational. So only the purpose is we should inculcate some various knowledge which we have, and that should be very quickly, that should be transferred to in your mind. So this is the purpose for this interaction, and really I am thankful to my colleague, my friend and HOD mathematics here, Professor Satyavir Singh, who studied in the night. Especially this trip was already planned for the Chandigarh. I visited studied Chandigarh Sukala, and then I met with the Vice Chancellor PU studied, and with a special purpose. And that purpose, what is that special purpose, I will cover and I will discuss with you. And then today I decided I should visit with you and I should meet some of you. I should discuss my part and what is the purpose for which we are working. And then after this meeting, I think in afternoon I am going in Thapar also. Okay, so let us start first of all on a very quick note because I have the MBA students and I have our final year science graduates. This session should be interactive. I always suppose that every my interaction with the student, if I am going any outside, then that should be very much interactive. As a professor, since I say from last more than 25 years, I have serving in higher education, and I'm lucky enough I did my doctorate when I was only 26 or 27 years old. And I joined Lokowal also as a youngest professor in our department, and I got Lokowal service also just after my doctorate. Entire my philosophy since this profession I chosen by choice. So I always enjoy your company. This company of my students. So this is the philosophy of my life, and I am happy to visit about. I have visited about 10 to 12 countries. I interacted there also the students
तो स्टूडेंट कम्युनिटी आई फाइंड कि ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर. It is the teacher who try always, motivate always to inculcate the spark in your mind, ignite your mind, and so that with one interaction, sometimes your life will change. I have seen in my entire 25-26 years. So first of all, I should start. I will discuss many things, but I will start today's discussion with the what is your objective? Just I wanted to know what is your, have you planned, have you met with your goal? क्या आज तक आपने कभी कोई प्लान किया है कि आपको करना क्या है? क्यों हम बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्यों हम एमबीए कर रहे हैं? बिकॉज इट इज ऑलवेज इट इज क्लियर इन योर थॉट्स. और ये सबको पता है कि बेटा सपोज यू वांट टू गो फ्रॉम चंडीगढ़, तो इफ आई एम सेइंग कि आई वांट टू गो चंडीगढ़, देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज प्लानिंग रिक्वायर्ड फ्रॉम योर ऑफिस? एनीवन, आप कोई बताइए. Let us suppose I am saying I want to reach Chandigarh in this afternoon. Then how I can plan? नहीं, let us suppose I am not talking about the job. I am telling only a simple example. I want to go Chandigarh. So this thought came into mind. And then thought will convert into the action. Okay? And then you will think one by step, and then finally you will reach. It is okay? It is okay, no? If thought came, I want to go, then the action will start. So this happened with every individual. Which is the best iPhone or best phone of your choice? iPhone. Who is the who given the iPhone? किसने iPhone बनाया? आप में से कोई बताएगा? फिर साइंस. You know, सब जानते हो. अभी जब हम बोलेंगे तुरंत सबको, क्योंकि हमें सब I suppose कि my youngsters are quite smart and you know, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया. फादर साहब से किसी से मांगने को पापा हमें आईफोन चाहिए, किसने बनाया? कौन सोचेगा? किसने बनाया? आप बताओ. स्टीव जॉब्स. और स्टीव जॉब्स के बारे में क्या क्या जानकारी है? किसी कोई बताएगा? आप में से एनीवन? कौन बताया स्टीव जॉब्स आईफोन का? किसने बताया? हाँ, यस. स्टीव जॉब्स के बारे में थोड़ा सा पता होगा, बिकॉज यू नो एटलीस्ट कि इसका प्रोडक्ट है. एप्पल. और देखो, अगर पूरी लाइफ में एज ए कॉर्पोरेट हमें अगर हमसे पूछा जाए तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मी, एंड दैट शुड बी ऑलवेज, he should be always known by all the graduates and the MBA graduates. क्योंकि अगर किसी को समझना हो कि पैशन क्या होता है, लव क्या होता है, और कैसे आप अपना टाइम स्पेंड करोगे, तो स्टीव जॉब्स का और लॉस क्या होता है. जैसे कभी कभी हमें लगता है कि हमारा एक पेन खो गया, एक किताब खो गया, और ये तो बहुत बड़ा लॉस है. लेकिन एक्चुअल लॉस क्या होता है, एक्चुअल लव क्या होता है, एक्चुअल पैशन क्या होता है, दिस ऑल यू कैन टेक फ्रॉम द लाइफ ऑफ स्टीव. बहुत क्विक पर, क्योंकि हमें आगे में डिस्कस करना है, बड़ी क्विकली हम बताएंगे छोटा सा कि आगे जाके आप पढ़िए उनकी स्टोरी. दैट इज वेरी मैंडेटरी फॉर यू. स्टीव साहब जब 20 साल के थे तो उन्होंने उनके दिमाग में फितूर था कि हमें कुछ करना है, नया कुछ करना है. फादर साहब से डिस्कस किए कि हमें स्पेस चाहिए. लाइक आवर फैमिली, हमारे फैमिली में भी तुरंत एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डिस्करेज ही किया ज्यादातर हमारे फैमिली का जो बैकग्राउंड है और उसके वजह से वहां पर उस समय भी उनको बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं हुआ फादर साहब के द्वारा. लेकिन ही वाज रेडी टू गिव द गैराज. ये ठीक है, हम गैराज देते हैं, गैराज में कुछ काम हम करें. एंड ही स्टार्टेड टू वर्क ऑन दैट गैराज इटसेल्फ.
ऑफ टाइम, जो घर का टाइम के अलावा. एंड देन ऑन ए क्विक नोट, when he reached about 28, then he developed this. He was the founder of this company. 26 age, 25, 26 age. Apple. और उसको उन्होंने बना दिया. और यू नो कि कारपोरेट लॉ आप लोग पढ़ते होंगे. कारपोरेट लॉ में आपको कहीं कोई इंडस्ट्री बनाने के लिए यू हैव टू फॉर्म द सोसाइटी. सोसाइटी उन्होंने बनाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट को बनाया, और अपने से बहुत काबिल एक व्यक्ति के उन्होंने अपॉइंट किया. और जिसको अपॉइंट किया उससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिफरेंसेस बढ़ते हैं. इतने बढ़े कि when he was 30 year old and the company was on full swing, उसका जो शेयर था वो 51-52% हो गया उस व्यक्ति के नाम से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन था, द अपॉइंटी ऑफ स्टीव. उसने और लोगों को के साथ मिल करके स्टीव साहब को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया. बिग लॉस, जस्ट थिंक. और इसके बाद वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप जीवन भर मत भूलिएगा जो भी आगे बोलने वाले हैं. जब निकाल दिया तो लिखते क्या है कि वो कई रात तक सो नहीं पाए, बेचैन रहे. भाई उन्हीं की कंपनी जिसको उन्होंने इतने प्यार से बनाया, उस कंपनी से उनको निकाल दिया गया. बट व्हाट ही सेड कि I was very sad in those days, but one fine morning I realized कि I should change, I should transform my mindset as the mindset of just graduate when he was just a graduate. He transformed his mind into 10 years before when he conceived the idea of Apple. तो उन्होंने पूरी पर्सनालिटी को अपने उसमें गए नहीं कि थोड़ी सी अब मुसीबत आ गई तो फिर हमने क्या किया, गम में आ गए और फिर बॉटल वगैरह ओपन होने लगा और फिर हम ड्रिंक करने लगे और गम को बुलाने के लिए बहुत ज्यादा हम उसमें आ गए. नो, he just transformed his mindset कि 20 साल पहले लेते गए कि when he was nothing to lose, this ignite mind, sky is your limit for you. फिर उन्होंने क्या किया, उससे बढ़िया और उससे बेस्ट जो आज भी है एनिमेटेड स्टूडियो को बनाया. एंड दैट इज द नेम. कौन बताएगा जो आज भी है? नंबर. और जब उसको बना दिया, उसको डिजाइन कर दिया, देन द सेम कंपनी उनको लगा कि ये तो हमसे बेस्ट एप्पल का जब ये बना सकते हैं तो ये टेक ओवर कर लेंगे. Then they again requested me to come into the company. And after, in the meantime, he also got married. और उनकी कंपनी भी, उनका पार्टनर भी बहुत अच्छा था. और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया. तो जस्ट यू रियलाइज कि एक थॉट, एक माइंडसेट, द पावर to convert into the reality that is always generate in your ignite mind. Okay, तो फर्स्ट थिंग अबाउट, अगर नहीं सोचा है तो आज का लेक्चर यही है कि पहले हम सबको अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार ये जानना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर प्लान, स्पेशली करियर प्लान. ओके, तो आई विल ट्राई माय लेक्चर विद दिस पीपीटी. आई थिंक इट इज फ्रॉम हियर. ओके, तो आई थिंक एवरीथिंग इज रिटन. केवल थोड़ा दिमाग में लाने की बात है कि ये प्लानिंग क्या है. एक इन्हांसिंग एंड इम्प्लाइज फ्यूचर पैशन, कि आपकी फ्यूचर वैल्यू कैसे इन्हांस हो सकती है. आप एक ब्रांड हो, आप एक ब्रांड बनने की कोशिश करिए. एवरी इंडिविजुअल हैज द यूनिक आइडेंटिटी. विश्व में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं. तो जो भी आपका है वो अच्छा है, उसको और अच्छा बनाना है. पहले तो ये भाव होना चाहिए. फर्स्ट यू शुड बी एम्पावर्ड विद योरसेल्फ. ये नहीं कि जो दूसरे का है वो अच्छा है, हमारा तो सब बुरा है. नो, एवरी नेगेटिव हैज ए बिग पॉजिटिव.
हाउ यू आर टेकिंग दैट पॉइंट। तो ये आपको सोचना है। You have completed school and college education with the academic preparation essential to choose from a wide range of options। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। देखिए आजकल MBA चाय वाला ही बना दिया, तो तब MBA नहीं है। MBA चाय वाले की स्टोरी पता है आपको? ठीक है, आप पता करिए, उसको पढ़िए थे। लेकिन उसने एक थॉट आया, उस थॉट से उसने वो चंडीगढ़ में भी आउटलेट उसने खोला, गुजरात से आकर। एंड वी आर नोइंग, पंजाब को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है कि फूड पैकेजिंग और फूड के लिए हम लोग पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, फूड सप्लाई। लेकिन यहां नहीं करना है, कनाडा जाना है, हमारे लोग सारे भर्ती के लिए तैयार है। किसने रोका है आपको कि आपके पेरेंट्स अगर फूड ग्रेन को क्रॉपिंग करते हैं तो आप पैकेजिंग करिए और उसको ग्लोबलाइज करिए, उसकी इंडस्ट्री बनाइए, आउटलेट लगाइए, इंटरनेट। किसने रोका है भाई? ये पोटैटो आज के 15 साल पहले हम फूड डिपार्टमेंट के बच्चों को मोटिवेट करते थे कि जैसे हमारा हमें रोटी चपाती खानी है और आटा गूंथते हैं, वैसे ही क्या पोटैटो का पाउडर बन सकता है? बनाइए पोटैटो, हमारे पास ढेर सारा है। There are a lot of things you can do in Punjab। पेप्सी को आकर के चरणों में खोला है इसलिए कि यहाँ के चिप्स पूरे वर्ल्ड में बेच रहा है, हम आप खरीद रहे हैं। बोलो, आई विजिटेड यूएस, और यूएस से जिस फ्लाइट से हम आ रहे थे 1918 में, हमारे जस्ट बगल में एक आपके तरह एक लड़का था 30-35 साल का, और वो पूरी रास्ते में उसके पास पता नहीं कैसा 2018 में यूएस हम थे, टेक्सास, शिकागो, दोनों जगह, और वो वहां से एंटरप्रेन्योर था, मल्टीनेशनल का किसी का सीईओ था। ही वाज रेजिडेंट ऑफ टेक्सास, अमेरिकन था, और यहाँ सारी सिटी में प्लानिंग करता गया अपनी मीटिंग का सैटरडे मंडे, एंड ही जस्ट वेंट अपॉन ऑन ट्यूसडे। सैटरडे संडे मंडे का हर ऑफिस के जो हेड थे, बंगलौर, दिल्ली, चंडीगढ़, सब जगह वो मैनेज कर रहा था। तो आइडिया कि उनको जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब प्रोवाइडर बनना है, एंड दे आर डूइंग दिस। A job plan is an individual choice of occupation, optimization and future path। नौकरी की योजना व्यक्ति के व्यवसाय, संगठन और भविष्य के रास्ते का विकल्प है। अब नौकरी कुछ और करना है, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये तब होगा जब आप उसके लिए अपने को जानेंगे। फर्स्ट यू नो योरसेल्फ, इन्वेस्टिगेट द वर्ड ऑफ वर्क इन रिलेशन टू नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड टू मेक डिसीजन। यहाँ पर हमारे यूथ को बहुत, आप ये आजकल क्या है, देखो हमारे डॉक्टर साहब के समय में और अब में क्या अंतर है, बिग डिफरेंस क्या है। हमें याद है कि व्हेन आई वाज डूइंग, और डॉक्टर साहब को भी याद होगा कभी आए थे, उनके में थे और काम कर रहे थे, हम लोगों को रिसर्च करते वक्त, अब हमारे लिए तो पैशन उस समय था कि हमारी टाइपिंग मैथमेटिक्स की थीसिस की कंप्यूटर पर हो, जो एक्सटेंसिव बने, बहुत मुश्किल था कि टाइपराइटर से होता था एक्सटेंसिव, क्योंकि और when this thought came into my mind in 1997-98, and I visited throughout the city, and I was ready to pay about 100 rupees per page, लेकिन लोग देखते थे उसको, देख करके करते थे, नो मैथमेटिक्स इट इज नॉट पॉसिबल टू टाइप। Then I decided to learn equation editor in 96-97, and I typed my thesis in 97 at my own. And that was the first thesis which is typed in computer in 1997. क्यों हुआ? क्योंकि वो थॉट आया, फिर हमने डिसाइड किया। अब हमारा क्या, हम असाइनमेंट अपने बच्चों से लेते हैं, लोग वहां में एमएससी के सब इक्वेशन एडिटर पर करते हैं, केवल उस थॉट का हमारा कि नहीं उनको सीख जाए, कम से कम टाइपिंग उनको आ जाए। स्मॉल थिंग्स, लर्निंग के लिए क्या चाहिए कौन बताएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग? सीखना किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में ये भी नहीं पता लगता था कि पता चला कहीं आ गया साई या फाई, आपको कह रहे फाई कैसे बनती है मुझे नहीं पता है, आप शाम को आना टाइप करो, शाम तक खोज के रखो।
डबल डॉट के लिए हमें जो डॉक्टर कर रहे हैं डबल डॉट कैसे लिखेंगे मैथ में, इसके लिए 3-4 दिन हमने रिसर्च किया, समझा, कोई बताने वाला नहीं। जब कोई बताने वाला नहीं, you have to learn at your own and that is the best learning. कोई भी चीज सीखने के लिए क्या जरूरी है, कोई बताएगा, पार्टिसिपेट करेगा। और हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश जैसा भी बोलना चाहो बोल सकते हो, लेकिन पार्टिसिपेट करो, बोलो। पैशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, वेरी गुड। और जो भी दिमाग में आवे बोलो। वी आर टीचर, सारे आपके डिपार्टमेंट के और हम भी आपके टीचर ही हैं, बस। हाँ बोलो, कोई बोला? आप बोलो। डिजायर होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, वेरी गुड। और बोलो कुछ भी बोलो बेटा, ये इंटरेक्टिव सेशन हाँ। है। बोलो। इच्छा होनी चाहिए, डिजायर तुमने बोला। और आप बताओगे? कोई चेंज लेके आने में सोसाइटी में, कोई चेंज लाना है, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ डिजायर, दैट इज आल्सो गुड। हाँ, और कोई एनीथिंग न्यू? देखो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में बैठे हैं, सो मेनी मैथमेटिशियन, तो यहाँ मैथमेटिकल फार्मूला बताते हैं तुम्हें, टाइम प्लस एनर्जी इज इक्वल टू लर्न। समझ आ गया? कुछ भी सीखना है तो शॉर्टकट छोड़ दो, तुम्हें टाइम देना है और अपनी ऊर्जा देनी है, तभी तुमको सीख पाओ। याद रहेगा तुमको? जब भी कुछ सीखना हो तो किसी को गुरु मानो, वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, तुम्हारे सीनियर भी हो सकते हैं। और नाउ इन दीस डेज जो हम बताना चाहते थे, तो यू आर पीपल आर लकी कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ये पहली बार हुआ है 10 डिकेड में, हम सब पहले परेशान थे, हम बहुत मुश्किल था हमें। एक जीआरजी उस समय जनरल आता था 96-97 में, वो जीआरजी जनरल रिलेटिविटी एंड ग्रेविटेशन का जनरल की फोटोकॉपी हमको मिल जाए, इसके लिए हमारी एनर्जी बहुत खर्च होती थी। और वो बड़ी मुश्किल से पूरे 2 दिन 1 सप्ताह का प्रोजेक्ट होता था कि लाइब्रेरी के बाहर वो कैसे बुक हम ले जाएं और उसकी फोटोकॉपी कराना है दिन। जस्ट इमेजिन। तो नाउ इन दीस डेज रिसोर्सेज आर प्लेंटी ऑफ द रिसोर्सेज। अब यहाँ पर क्या है, तुम्हारा रोल क्या है कि यू हैव टू कीप बैलेंस टू ट्रैक द रिसोर्सेज। अब हर फील्ड में कोई हंसा रहा है, कोई रुला रहा है, कोई ढेर सारे बहुत ऐसे डिस्ट्रैक्शन के आइटम्स भी हैं, लेकिन यू हैव टू चूज की इन दिस स्पॉन ऑफ टाइम व्हाट इज योर प्रियोरिटी, हाउ यू वांट टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज, टाइम एंड एनर्जी। इसमें हमारे यूथ पहले से डिस्ट्रैक्ट हुए। पूरे यूनिवर्स में सबसे मूल्यवान चीज क्या है जिसका कोई प्राइस नहीं? उल्टे, टाइम। टाइम इज प्राइसलेस। पूरे 2 कॉन्फ्रेंस हम विदेश में भी देख चुके, टाइम के ऊपर आज तक टाइम की परिभाषा नहीं है। पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट परेशान टाइम को डिफाइन करते हैं, प्राइसलेस। तो जो चीज प्राइसलेस है उसको खर्च कैसे किया जाता है? विथ ए प्रॉपर मैनेजमेंट, विथ प्रॉपर टाइम। अब आप में से कितने का टाइम शेड्यूल है? आई डोंट, नहीं है तो प्लीज बनाइए, आज ही बनाइए। 1 वीक का बनाइए, 1 मंथ का बनाइए, 1 साल का बनाइए, अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार बनाइए, लेकिन जरूर बनाइए। इट इज क्लियर टू ऑल? Yes. समझ आया आपको? बनाएंगे आप? रेज योर हैंड, ऐसे नहीं मानेंगे। पक्का? पक्का? गुड, थैंक यू। तो नाउ चूज एक ऐसी नौकरी चुने जिसे आप पसंद करें। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, या तो आपको आता है या नहीं आता है। आप समझ गए? कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता, पहले दिमाग में बैठे, या तो हमें वो काम आता है या नहीं। तो इसलिए वो झिझक निकाल दीजिए जो हम लोग के जनरेशन में था पहले। आप लोग उससे ऊपर होंगे। जब उससे ऊपर होंगे तो यू विल फाइंड ए लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल विजन विद इन यू। देन यू कैन स्टार्ट बाय टेकिंग वन स्मॉल थिंग्स। जैसे होता है कि कुछ चीजें आप पे बेटर है, कुछ आप हमारी जनरेशन में आपके पेरेंट्स होंगे या आपके एल्डर होंगे, तो उनके में और आप में ये पॉजिटिव भी है। You just reject that एवरी वर्क इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको बेस्ट करना है।
जैसे ये नहीं कि यहाँ को हम अपने खेतों में काम नहीं करते, हमें कनाडा जाकर करते हैं, तो ये उसकी डिफिनेशन में नहीं है। यहाँ हमें अपने स्ट्रेंथन देना है, अपने पीयर ग्रुप को स्ट्रेंथन करना है, अपने पेरेंट्स को कि वो क्रॉपिंग करते थे या वीट की, अब हमें पैकेजिंग करनी है, हमें इंडस्ट्री के बारे में सोचना है, हमें ऑप्टिमाइजेशन कराना है उसको लेकर के, हमें देखना है कि हाउ आई कैन स्ट्रेंथन आवर फैमिली बिजनेस। ये करने की वजह कि नहीं हम आपकी परचून की दुकान पर नहीं बैठेंगे। हाउ यू कैन सेल ऑन अमेज़न, हाउ यू कैन सेल द प्रोडक्ट ऑन वेरियस अदर ग्लोबल लेवल। आप पता है कि आप जो ऑर्डर करते हो कहां पैक हो रहा है, कहां से आ रहा है, कुछ नहीं पता। Only we are being a huge market around the world. आप में से कितने को अब आप लोग बताओगे कंप्यूटर से कितने हैं, मैथ के कितने लोग हैं जिनको C+ प्रोग्रामिंग आती है अच्छे से? क्यों नहीं आती है? सीखिए ना। अभी स्टूडेंट्स सारे स्ट्रीम के आए हैं सर। ओके और की स्ट्रीम। ओके नाउ अब क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपको अगर सफल होना है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक मॉडल जो अराउंड द वर्ल्ड आजकल चल रहा है, जिसको हमें लगता है कि ज्यादातर आप लोग के कोर्स में भी होगा, आप तो पढ़ते होंगे। बोर्ड इज This I have written an article skill, problem solving। जैसे इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है, साइंस वाले बताएंगे। देखो इंजीनियरिंग और कुछ नहीं है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग इज नथिंग बट लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। इसलिए मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का कोई है तो ही शुड ऑलवेज दैट शुड बी कैप ऑफ द सब्जेक्ट। ये हम प्रूव भी करते हैं जब व्हेनेवर आई अटेस्ट द इंजीनियर्स। इंजीनियरिंग इज नथिंग बट, उसका एक ही है डेफिनेशन जो हम साइंस में पढ़ते हैं। देखो साइंस में दो बड़ी इंपॉर्टेंट लॉ है आपके पास। एक को कहते हैं किरचॉफ लॉ, जितनी भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है उसी का एप्लीकेशन। दूसरे को कहते हैं न्यूटन लॉ, सारी मैकेनिकल से रिलेटेड जितना है उसके एप्लीकेशन। और जो दोनों को मिलाता हो गया है डिफरेंशियल इक्वेशन। उनकी बुक देखोगे 4 लॉ का आपको यही दिखेगा। And nothing else. I was talking around the world in the industry, what is going on? Now guess. First you guess. You people. क्योंकि ये आपके डोमेन का है। I have written here the triangle. K, yes. What is the What should be? Have a guess only. K का मतलब क्या होना चाहिए? कुछ भी बोलो, बोलना है, चुपचाप सुनना। हाँ बोल रहा हूँ। Knowledge. आप बताओ। K stand for? अपना थॉट नहीं है, जो वहां से चला वही चल ये अपना थॉट है। Yes for? चलो अब K से हट जाते हैं। Yes? स्किल। हाँ, और A फॉर एप्लीकेशन। और कोई बताएगा? चलो तो दे आर बेटर, इन्होंने अच्छा गेस किया। K फॉर नॉलेज एंड S फॉर स्किल्स। दैट इज करेक्ट। A फॉर एबिलिटी। ठीक है। नॉलेज एंड स्किल। देखो ये तो सबके पास है। जहां तुम अप्लाई करोगे इसके बाद जब भी जाओगे ना, तो जो भी तुम्हें कैंडिडेट मिलेंगे इंटरव्यू रूम के बाहर, या कहीं आप इंटरप्रेन्योर भी बनना चाहोगे, वो भी टफ है, अभी हम उस पर भी आएंगे जो मेन पर्पज है। लेकिन ये तो सबके पास है। ड्राइव कैसे होता है? दिस विल ड्राइव विथ योर एटीट्यूड। दिस इज इंपॉर्टेंट। आजकल 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के जॉब हमने अपने टेनोर में अपने बच्चों को हमारे पिला, लेकिन दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग।
अभी अमृतांजलि एक हमारी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, पिछले साल 25 लाख पर गई इलेक्ट्रॉनिक्स की लड़की, बट शी वाज रियली गुड। हर चीज उसके में था, हर चीज उसने इनकलकेट किया था, सीखा था। फिर अमेजोन लिखा 21 साल की है, 23 साल का पैकेज, 23 लाख का पैकेज। उसने एक एक दिन, आप अपने को जब तक ब्रांड नहीं बनाओगे, एक ही चीज सीखोगे नहीं, पहले आप अपनी नजर में अच्छे नहीं होगे तो कोई आपको वेस्ट नहीं करेगा अपना टाइम। तो दिस इज गोइंग ऑन। जो भी बड़े बड़े सीईओ वगैरह बात किए, ये लकली हमें एक मौका मिला था वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस में होटल ताज मुंबई, और वहाँ सीईओज और एचआर की मीटिंग को भी हमने एड्रेस किया था एजुकेशनिस्ट। तो उसमें हमने इस पर बहुत ज्यादा लंबा बात किया था, केवल इसी पर, एक ही है। Okay, तो this has the multiple component, इसको आप बहुत अच्छे से ये देखोगे। Now the proficiency in mathematics, that is always there, mathematical ability ये होना चाहिए, ये जरूर नोट कर लोगे, ये नोट कर लेना। These are the from best practices, this PPT is there, कि 5 steps of your planning क्या होना चाहिए। Self assessment, you should know where you stand and you act accordingly. Explore work and option, कि आपके लिए बेटर क्या है। Narrow down list of work and career option. Decide or choose the best option according to your strength and set a goal कि पहुंचना कहाँ है, और वो गोल कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक पे पूरी आपकी स्ट्रेंथ होना चाहिए। कभी कभी आपकी स्ट्रेंथ जब फैमिली की और आपकी जब आप इवेल्युएट करते हो और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हो तो बहुत आगे चले जाते हो लाइफ। और ये होता है कि नहीं, केवल निगेटिव ही देखना है, तब ना पॉजिटिव उतना आ पाता है ना आगे बढ़ पाते हो। तो व्हाट द सेट सेज कि यू डिसाइड द बेस्ट ऑप्शन, उसमें क्या है उसके अनुसार। नाउ किससे दूर रहना है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे निगेटिविटी, हर आदमी से एडवाइस नहीं लेना चाहिए, ये भी हम अपने बच्चों को मना करते हैं। आपके लाइफ में 2-4-5 मेंटोर टीचर होने चाहिए 5 साल। एडवाइस सजेशन उन्हीं से लीजिए जिनका कुछ अचीवमेंट हो। अपने वहां प्रॉब्लम क्या है कि बहुत लोग बहुत बिना जाने सुने एक एडवाइस दे देते हैं। यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। नेगेटिव एटीट्यूड, इससे दूर रहना है। इमोशंस नेगेटिव जो आते हैं, एंजाइटीज होती है, उसका कोई प्लेस नहीं होना चाहिए। और अभी जैसे आपने बताया था वो भी पार्ट है, एबिलिटी तो है ही। एप्टीट्यूड, एबिलिटी, जैसे बहुत जगह आपको कहीं एंट्री लेनी है तो थोड़े से अवेयरनेस होना चाहिए, लॉजिकल माइंड है कि नहीं, रीजनिंग है कि नहीं, उसके लिए भी आपको हर एक अभी हम शेयर करेंगे, आई थिंक आज ही शेयर करते हैं। हमारे पास इन्फोसिस मैसूर कैंपस से है एक नोटिस जो 19, 20, 21, 22 सारे बैच के लिए उनका ऑनलाइन ओपन है। आप अपने डाल सकते हो, एमएससी भी है उसमें, एमएससी मैथमेटिक्स। जस्ट नाउ आई विल शेयर विद योर एचओडी, ठीक है। आप लोग उसमें अपीयर हो सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, उनका एक एलिमेंट्री टेस्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐप है उनकी। I was lucky enough कि from the Punjab, I think myself and picked HOD, Thapar HOD, Baba Sahab. We were there at the start of, they have started, Infosys has started a new app in 2018 and they decided that we should call who will be their guest. So they decided that we are calling some HOD who is looking the training and placement, and then from Punjab I think 3 or 4 were there in Mysore campus. And we were their guest to inaugurate one app. That app is InfiTQ. ये आप फ्रीली अवेलेबल है आपके सिखाने के लिए। आपको इसको InfiTQ दिस ऐप आज ही आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके थ्रू आपको 8 LPA तक की जॉब ऑफर हो जाती है साइंस और इंजीनियरिंग के बच्चों को, अगर आप उनका स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाएंगे और घर बैठे ऑनलाइन। पहले वो आपको ग्रूम करते हैं, प्रोग्रामिंग भी बताते हैं, कोडिंग वोडिंग भी बताएंगे, कुछ आपको अपने सीखना होगा और उसके थ्रू जब जाओगे तो हमारे कम से कम
15-20 बच्चे इस बताने से, इस इंटरेक्शन से ही वहां तक पहुंच गए। पहले आपको 3.5 देती है, फिर उससे बेटर 5.5, फिर 8 तक लास्ट तक जा सकते हैं पावर प्रोग्राम। And we were the first to inaugurate this InfyTQ app in Mysore campus. Okay, so I was just discussing this. Now it is very important to discuss. केवल हम इसको एक थ्रो करेंगे कि आप जानते हैं इंडस्ट्री 4.0 now everywhere it is going on. औद्योगिक क्रांति जो पूरे विश्व में हुई, इंडस्ट्री 1.0 कब हुई और क्या है इंडस्ट्री 4.0 से क्या मतलब है? किसी के दिमाग में है आप में से? इसलिए सब जानना चाहिए आपको क्या है। देखो तो 4 तरह की औद्योगिक क्रांतियां हुई है ना वर्ल्ड में। इंडस्ट्री 1.0 कब? अब थोड़ा सा ब्रॉडली इसको समझना। इंडस्ट्री 1.0 कब? 18th सेंचुरी। सबसे पहले हमारे पास क्या आया? वाटर एंड स्टीम, उससे पावर जनरेट हुआ। तो ऑल द इंडस्ट्रियलाइजेशन अराउंड द वाटर एंड स्टीम, वो पावर हो गया ना। तो जितने भी जॉब ऑप्शंस हुए वो उस 18th सेंचुरी में कहां हुए? स्टीम इंजन आया, स्टीम से सारे प्रोडक्ट आए। दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री 1.0। Then 2.0, what came? In 19th last or 20th century, जो पूरा वर्ल्ड में क्या आया? इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांजिस्टर उसके बीच में आया, ट्रांजिस्टर, बैटरी एंड देन इलेक्ट्रिसिटी। तो एवरीथिंग जनरेटेड अराउंड दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री 2.0। नाउ कंप्यूटर केम, और कंप्यूटर सब जगह क्या हुआ? जितने लोग उसके एक्सपर्ट चाहिए हमें, चाहे यहाँ हो या अब उसमें इंडिया अच्छा है कि हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स, लेकिन वो पहले क्या पढ़ लिख के जाते थे कनाडा और हर जगह तो मान सम्मान होता था। अभी क्या है? भीड़ चाल लगी हुई, आईलेट करना है, वहां जाना है और वहां कोई प्राइस वाली जॉब नहीं है। पहले भी गए हैं हमारे लोग, बहुत जाते थे, लेकिन वो अच्छी डिग्री लेके गए तो इंटरप्रेन्योर है वहां बड़े बड़े। ठीक है, तो जाना तो अभी भी है, जाइए, लेकिन अच्छे सिग्निफिकेंट बेस जाइए, एक अच्छी डिग्री लेके जाइए। तो आईटी प्रोफेशनल का डिमांड बढ़ गया, हमें नौकरी चाहिए थी हमारे यूथ को, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनों को अच्छा किया। आप देखिए सुंदर पिचई भी हमारे, अब वर्ल्ड लेवल के आप बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल को देखिए, आपके ही हैं, बड़े ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं। तो दैट इज इंडस्ट्री 3.0। नाउ एवरी डिसिप्लिन इज लुकिंग आफ्टर ऑटोमेशन, दैट इज इंडस्ट्री 4.0। इररिस्पेक्टिव ब्रांच का कोई मतलब ही नहीं है, ये बॉटनी है, जूलॉजी है। अब बॉटनी जूलॉजी में भी उसको जॉब मिल रही है जिसकी कंप्यूटर बढ़िया है, जिसकी कोडिंग आती है। इसलिए चाइना ने अपने 6-7th ईयर के बच्चों को कोडिंग सिखाना शुरू किया और हम अपने बच्चों को वीडियो गेम खिलाते। क्योंकि ऑटोमेशन अगला जो 50 साल है, 20 साल हमें दिख रहा है, कोई फील्ड नहीं छूटेगा जो ऑटोमेशन से जुड़ा हो। क्यों? क्योंकि हम सबको अच्छा तो लग रहा है, हमारे घरों में ऑटोमेशन है, हमारे हाथ में है, हमारी कार में है, हर जगह तो ऑटोमेशन, एंड वी आर द बेस्ट यूजर ऑफ द ऑटोमेशन। मोदी साहब की इसलिए ज्यादा साख है क्योंकि हम लोग 1.5 साल के लोग हैं और बहुत बड़े मार्केट है, सबको हमारी जरूरत है। I get my point? So now this is very important that we should be ready with the industry 4.0. So this is the blend of advantage. Now the future of the job employment, skill and workforce strategy. These are at least we should be ready with this. But rather than an opportunity for work to truly become a channel through which people recognize their full potential. So collective, this is a collective responsibility to lead our businesses and communities through this transformative moment. This moment is very transformative. So this is from my side, at least you should be ready with the skills. कि ये सारे क्रॉस फंक्शनल स्किल सेट कोशिश करिए कि इसमें से जितना आपके अंदर हो सके आप दिस लर्निंग, एज आई सेड कि उसका कोई और छोड़ नहीं है, लेकिन कुछ भी एक स्टेप आगे बढ़े। You think about yourself, plan your own objective. That is the purpose. Please get down. Now I want to show now this
पैशन फॉर लर्निंग दैट इज ऑलवेज देयर। आप फिर एक बार अपने को आइडेंटिफाई करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, कहाँ जाना है। पाथ जिगजैग हो सकते हैं, और एक बड़े लेवल पर जब आप देखोगे तो बड़े लेवल पर नॉलेज का कोई कंपार्टमेंट नहीं है। नॉलेज किसी भी एरिया का हो उसको एक्नॉलेज किया जाता है। इसीलिए देखो हम लोग की हाईएस्ट डिग्री जो पीएचडी है उसका कोई सब्जेक्ट जल्दी ये हम लोगों ने बना दिया, लेकिन जब ये डिग्री आएगी तो सब्जेक्ट नहीं बनता था। इसीलिए डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि फिलॉसफी से ही सारा सब्जेक्ट आएगा। ओके, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें एक्सेल करने की कोशिश करें। ठीक है, उसमें जितना एक्सेल आप करेंगे, कुछ भी नया करेंगे वो नया होगा। दिस इज माय पर्पस टू टुडे फॉर दिस डिस्कशन। कि रिसेंटली ये भी एक स्टोरी है कि एक छोटा सा व्हेन आई वर्क एज ए आई वाज टाइपिंग द ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफ फ्लाइट लोगोवर, then I always surrounded by the students, and I take the interview of 300-400 students and select few students who will look after the training and placement part of our college. Then some of my PR placement representative, they were very good, but they never take any interest for the this placement. So I asked him, what do you want to? They said, sir, I want to become the interpreter. So I written on project to Government of India only for logo, but the government has appreciated this very much, and they have allowed me for whole Punjab. So they have associated the Punjab State Council of Science and Technology. So in that project, I have to select 20 students from the per annum basis, and to whom I will select, I will give up to 6 months, 10,000 per month as a stipend, and then you will be get training in your vision. कोई इंटरप्रेन्योरियल विजन होगा, आप कुछ इंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे तो उसके लिए इंडस्ट्री जो आपको सिखाएगी उसको भी हम लोग 12,000 रुपये पर मंथ देते हैं 4 महीने तक। लेकिन सब्जेक्ट टू कि पंजाब में आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और आपको अपना उसके बाद जो एंजल इन्वेस्टर हैं चंडीगढ़ के उनसे भी आपकी मीटिंग हो जाएगी। स्पॉन्सर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो सोच रही है उसके लिए भी आपको कहीं न कहीं हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे कि इफ यू आर हैविंग एनी आइडिया देन दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द रियलिटी। तो नॉट ओनली माई सेल्फ, द पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी officials, they are also with me. So in that section it was decided, we have already selected few students, वो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। ये MCM DAD चंडीगढ़ से है साक्षु, दे वर 5 स्टूडेंट्स जिनके वजह से हमने प्रोजेक्ट लिखा शुरू किया। दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोहन पाटिल, सचिन एंड देन आयुष। ये दोनों कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं, ये आपका इलेक्ट्रिकल का है ग्रेजुएट, ये बायोटेक से है ताक्षु, और देन ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से है हर्ष, और रवि लोगोवाल से है। तो नाउ आई वांट कि पंजाबी यूनिवर्सिटी से भी हमें एक दो लोग चाहिए कि जिनके अंदर जुनून हो कि उनको कुछ करना है, इंटरप्रेन्योरियल विजन है। तो नाउ HOD मैथमेटिक्स विल बी योर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये हम अभी शेयर करेंगे डॉक्टर साहब। आपको उसमें लिंक है गूगल फॉर्म का हमारा, उस गूगल फॉर्म के तहत आप अपना भर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। वी विल टेक इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू से हमें मतलब जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही लोग आ पाएंगे इसमें, क्योंकि हमारा पर्पस डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो पर्पस है हमें कि ट्रू सेंस में कुछ इंटरप्रेन्योर को बनाना। इसीलिए हम इंटरव्यू तो 200-250 का ले चुके, सेलेक्ट केवल अभी तक 8 ही किए हैं। ठीक है, और लेकिन चाहते हैं कि नाउ वी हैव स्टार्टेड टू गो पर्सनली एंड कॉन्टेक्ट वन सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट, कि सो दैट दिस इंफॉर्मेशन कैन बी, यू शुड आल्सो बी द हेल्पिंग हैंड। आपके भी नज़र में कोई जुनून है, किसी के आप में से किसी के पास है, या आपके किसी फ्रेंड के अंदर है, जो पूरा एकदम जुनून है उसके अंदर कुछ करने का, इंटरप्रेन्योर बनने का, उसको हेल्प नहीं मिल पा रहा है, तो यू कैन सजेस्ट हिम। आई थिंक अभी हम एक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक इसमें केवल एक वेलकम आपके लिए भी है, यहाँ पर एक गलती से केवल स्लाइड के लिखा है, बट दिस इज इन्विटेशन टू यू ऑल। आई थिंक दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, और आप इसको इसमें गूगल फॉर्म है जो आपको ईमेल के थ्रू भी हम डॉक्टर से शेयर करेंगे।
कि जिससे लिंक केवल आप क्लिक करेंगे तो वो भी इंफॉर्मेशन हम दे देंगे आपको, और ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। ग्रुप में शेयर आप कर देंगे तो केवल लिंक के क्लिक करेंगे तो उससे भी आ जाएगा। और दिस इज द कंबाइंड इन एसोसिएशन ऑफ HTR बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पंजाब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चलिएगा। तो उनके दोनों कॉर्पोरेशन से है ये। This is invitation from my side कि आप में से कोई एक जरूर आई जिसको कुछ बनना है और एक विजन है, तो आप और उसको कल्टीवेट करिए और कोशिश करिए कि आप आज बनिए। Really I'm thankful, especially your faculty, really you, I clap to you for him. Really I all the personnel and all the colleagues who are here, जो अभी हैं यहाँ पर तस्लीम, डॉक्टर तस्लीम है, Professor Satyadev, my colleague, and all everyone who are already is there, they are trying. It means they are also they want कि you should convert your thought into reality. So Professor Nuri साहब हैं, जितने लोग हैं, we are very much thankful. We clap for you all. Any query? Yes. Now I call upon Dr. N.S. Nuri to present. Write these projects and to go and interact with you, only a young mind can do it. तो हम लोग हैं थोड़े ओल्ड, ठीक है? तो I don't know what the culture is among young people, but I know what the culture used to be when we were young, when I was young. अरे क्या होता है? थोड़ा किसी को पूछो ना, गुआंढी जाता है, बेटा की कर रहे हैं, वो तो करेगा चलेगा, की कर रहे हैं वो दस की लोड़ नहीं होती, अगला चुप कर दो, करेगा चलेगा। कुड़ी वाले बोलते सी बेटी की कर रहे, वो तो ब्याह हो गया। But ब्याह हो गया तोड़ती, she is not my responsibility, I have nothing to do with her. What a strange kind of attitude. बच्चा कनाडा चले गया, उसे कर की रहे, गुजर कुछ नहीं लोड़ नहीं, कनाडा में सब कुछ हिराब भी हो गया। I'm not against Canada, मैं वैसे साहब भी बड़ा विजिट करते हैं, यूएस से भी जानते हैं, we all visit these places, and इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ यही पर्पस होना माइंड के विच भी मेरा एम है मैं कनाडा जाना, उस जगह पर चाहूँ ना। So this used to be the culture. I hope this is not the culture because I can see the change happening right in my street जहाँ मैं रहता हूँ. Because I see young girls opening up little businesses. Very young girls आते हैं अपनी शॉप खोलते हैं. Somebody is running a kirana store, somebody is running some beauty parlor. करते हैं. We didn't used to see these things. अब शायद culture better. वो culture इसलिए better है कि there are people like Ritika Mishra ji who's guiding young persons कि भाई अपना aim रखो. Right? Have some aim in life, work for it. डिग्री करके कई मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में मोस्ट ऑफ मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इट्स अ गुड थिंग, बट पेरेंटल एटीट्यूड क्या होता है कभी कभी इस करके मैथमेटिक्स कर रहे हैं बच्चे ने कहते तो जाना नहीं होगा, खुद को शो नहीं कर, घर बैठ के ट्यूशन पढ़ा करो नहीं करना है, दैट एटीट्यूड हैज टू चेंज। इफ यू वांट टू प्रोग्रेस यू कैन प्रोग्रेस एनीवेयर इन लाइफ, यू कैन प्रोग्रेस इन इंडिया आल्सो, अब्रॉड आल्सो, बाहर भी जाओ, दैट्स नॉट एन इशू, बट द इशू इज aim should be very clear, and this is a very good opportunity which Professor Ritika Mishra ji has shared with you. They will be giving you stipend while you are getting trained. If you get proper training, if you are passionate enough, you may end up getting jobs worth lakhs. I personally know students at Thapar University who have got this 35 lakh package, 40 lakhs, let's say, Southern National. So we are very, very thankful to Ritika Mishra ji for being here and sharing some wonderful thoughts with us and providing you with very good opportunity. And thank you very much, sir. Thanks for being here.